Good afternoon, everyone. We are going to start for today class. Earlier, I have told about n cubes. Okay, n cube is one of the special simple graph which is represented by qn. And as I have told you, in qn graph, the vertices will represent 2 to power n bit strings of length n. Okay, so whenever we have to draw q1, it will consist of two vertices to represent 2-bit string of length 1, and that is 0 and 1. The property of Q1 graph is that the vertices will be adjacent whenever the bit string represented by them are differing in exactly 1-bit position. Okay. So on this basis, we have defined that whenever we have to draw Qn plus 1 graph, we can draw it by taking two copies of Qn, and that has to be drawn one over the other one. Okay, and then after we have to include 0 to the lower Qn graph and 1 to the upper Qn graph. Okay, so how to draw this? So you can look at this screen. Okay, so I'm going to tell you how to draw Qn graph. Okay, so as I have told you, whenever we have to draw Q1 means Q1 will be drawn as this way. Here, this node will represent 0-bit string, and this node will represent 1-bit string. Okay, now if you want to, this is Q1 graph, this is Q1 graph. If we have to draw Q2, so we have to draw two copies of Q1, one over the other one. Suppose if you have to draw Q2, then we have to draw one more copy of this Q1. Okay, suppose this is this one. Again, this will represent 0 and this will represent 1 here. Okay, after that, what we have to do? So as I have told you, in order to draw Q2, we have to take two copies of Q1. तो ये दो कॉपीज हैं Q1 की, ये एक Q1 है और ये दूसरा Q1 है. ठीक है, अब फर्स्ट वाले Q1 में जो है हमें 0 सफिक्स करना है आगे, तो यहाँ पे 0 ऐड कर लिया, यहाँ पे 0 ऐड कर लिया. सेकेंड वाले Q1 में हमने 1 सफिक्स करना आगे, तो यहाँ 1 ले लिया और यहाँ 1 ले लिया. ठीक है, and now we have to make the vertices adjacent which are differing in 1-bit position. तो ये दोनों जो है 1-bit position पे डिफरेंस कर रहे हैं, इन दोनों को कनेक्ट कर दिया. ये दोनों जो है 1-bit position पे डिफरेंस है, इसलिए इन दोनों को कनेक्ट कर दिया. ठीक है, तो दिस इज द ग्राफ Q2. Okay, in the same way, if we have to draw Q3, so how to do this? So we have to take two copies of this. Okay, एक कॉपी Q2 की ये हो गई और दूसरी कॉपी हम लेते हैं. तो सपोज मैंने बताया कि एक के बाद एक लेना होता है,
one has to be drawn over the other one. Okay. Okay. Here we are saying that the vertices will be adjacent whenever it is one bit. It is one bit of difference. ठीक है. So look at this. यहाँ पे 0 0 0 1 इन दोनों में 1 बिट का डिफरेंस है क्योंकि यहाँ 0 है और यहाँ 1 है लोअर LSB पोजीशन पे. ऐसे ही 0 0 1 0 इन दोनों में 1 बिट का डिफरेंस है क्योंकि यहाँ पे इस MSB बिट पे 0 है, यहाँ MSB बिट पे 1 है, इसलिए दोनों एडजेसेंट हैं. 0 1 1 1 इन दोनों में भी एक बिट पोजीशन का डिफरेंस है क्योंकि यहाँ पे 0 है और इस बिट पोजीशन पे 1 है. ऐसे ही 1 0 और 1 1 इन दोनों में 1 बिट पोजीशन का डिफरेंस है क्योंकि यहाँ LSB 0 है और यहाँ LSB 1 है. ठीक है, इसलिए ये सभी वर्टिसेज एडजेसेंट हैं. लेकिन अगर हम 0 0 1 1 की बात करें तो ये दोनों 2 बिट पे डिफरेंस है क्योंकि यहाँ पे LSB पे 0 है, यहाँ LSB पे 1 है, यहाँ MSB पे 0 है, यहाँ MSB पे 1 है, तो 2 बिट का डिफरेंस हो गया. ऐसे ही 1 0 और 0 1 की बात करें तो यहाँ MSB पे 0 है, यहाँ MSB पे 1 है, यहाँ LSB पे 1 है, यहाँ LSB पे 0 है. ठीक है, तो इन दोनों में ही 2 बिट का डिफरेंस है, 2 बिट पोजीशंस का डिफरेंस है, इसलिए ये दोनों एडजेसेंट नहीं है. ठीक है, तो इसलिए ये दोनों एडजेसेंट हमने कनेक्ट नहीं किए. तो दिस इज द वे टू ड्रॉ Q2 फ्रॉम Q1. नाउ इफ वी वांट टू ड्रॉ Q3 तो हमें 2 बार Q2 ड्रॉ करना होगा. तो एक Q2 तो ये हो गया, दूसरा Q2 हम इसी को ऊपर ड्रॉ कर लेते हैं. ठीक है, लेट अस से हियर, let me change the color. ओके, हियर हमने क्या किया, एक और Q2 ड्रॉ कर लिया. सपोज दिस वे. ठीक है, इस Q2 को भी सेम उसी तरीके से लिख लिया. ये आपका 0 0 नोड हो गया. ठीक है, सेम सीक्वेंस में. ये 0 1 हो गया, ये 1 0 हो गया और ये 1 1 हो गया. ठीक है, सेम पैटर्न में हमने लिख लिया इसको भी. ठीक, अब इसके बाद तो ये 2 कॉपीज ऑफ Q2 ड्रॉ कर लिया हमने. अब हमें क्या करना है, मैंने बताया था फर्स्ट कॉपी में 0 को प्रीफिक्स करना है और सेकंड कॉपी में 1 को प्रीफिक्स करना है. ठीक है, तो इसमें हमने यहाँ सपोज इससे लिख लो, यहाँ पे पहले वाले में सब में हमने आगे 0 लगा लिया. यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0. ठीक है, और दूसरे वाले में सभी में हमने 1 को इंक्लूड कर लिया. यहाँ 1 आ गया, यहाँ 1 आ गया और यहाँ 1 आ गया. अब इसके बाद वर्टिसेस देखो जो 1 बिट पोजीशन पे डिफरेंस है जिनमें, उनको कनेक्ट कर दिया. तो अगर आप इसको, ये 0 0 0 है और ये 1 0 0 है, दोनों में 1 बिट पोजीशन का डिफरेंस है, इन दोनों को हमने एडजस्टेंट कर दिया. ठीक है, लुक एट दिस, ये दोनों 1 बिट पोजीशन चेंज हो रहा है, इन दोनों को कनेक्ट कर दिया. ऐसे ही ये 0 1 0 है, ये 1 1 0 है, इन दोनों में भी 1 बिट पोजीशन का डिफरेंस है, इन दोनों को कनेक्ट कर दिया. ये 0 0 1 है, ये 1 0 1 है, इन दोनों में भी 1 बिट पोजीशन का डिफरेंस है, केवल MSB पे चेंज हो रहा है. यहाँ MSB 1 है, यहाँ MSB 0 है, बाकी दोनों बिट सेम है, तो इसलिए इन दोनों को एडजस्टेंट कनेक्ट कर दिया. ऐसे ही यहाँ 0 1 1 है, यहाँ 1 1 है, यहाँ पे भी MSB का डिफरेंस है, तो इसलिए इन दोनों को हमने एडजस्टेंट कर दिया. नाउ दिस इज कॉल्ड टू बी एज Q3 ग्राफ. इन द सेम वे यू कैन ड्रॉ फॉर Q4. तो Q4 ड्रॉ करने के लिए क्या करना होगा, एक Q3 ये हो गया, एक दूसरा Q3 आप ड्रॉ करोगे. मान लो हमने यहाँ पे एक Q3 ले लिया. ठीक है, और इस Q3 को, लोअर Q3 को 0 सफिक्स कर लिया, प्रीफिक्स कर लिया, और अपर Q3 में हमने 1 प्रीफिक्स कर लिया, और फिर हम एडजेसेंट कनेक्ट कर देंगे जो जो वर्टिसेस 1 बिट पोजीशन से डिफरेंस हो रही है. ठीक है, तो बाय दिस वे यू कैन ड्रॉ Qn+1 by using 2 copies of Qn. Okay,
and connecting the vertices which are differing in 1 bit position. Okay, so any queries in this you can ask. Okay, so by this way you can draw QN graph. Okay, suppose you have to draw Q3 और Q4, तो Q4 ड्रॉ करने के लिए क्या करना होगा, सेम इसकी एक कॉपी यहाँ पे ड्रॉ कर लो आप. लेट मी डू दिस. ये हो गया और ठीक, सेम पैटर्न रिपीट कर लो यहाँ पे भी. ये हो गया 000, ये हो गया 001, ये हो गया 101, ये हो गया 111 और ये हो गया 01. यहाँ पे लिख लिया हमने 011. ठीक है, और ये हो गया 010 और ये हो गया 1 1 और 0. ठीक, तो और एक ये रह गया, ये हो गया 1 0 0. ठीक है, तो ये दो कॉपीज ऑफ Q3 हो गई. ठीक है, वी हैव ड्रॉन 2 कॉपीज ऑफ Q3. ठीक, इसको मैं दोबारा लिख लूँ. दिस इज 0 1 एंड 1. ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक कॉपीज में हमें 0 प्रीफिक्स करना है और एक कॉपी में हमें 1 प्रीफिक्स करना है. ठीक है, तो पहले कॉपी में हमने 0 सब में लगा लिया आगे. 0 0, this is 0, this is 0, this is 0 and this is 0. और दूसरे कॉपी में 1 सफिक्स कर लिया, प्रीफिक्स कर लिया यहाँ पे सबके आगे 1. यहाँ पे भी आ गया 1, यहाँ पे भी आ गया 1, यहाँ पे भी ले लिया 1, यहाँ पे भी ले लिया 1, यहाँ पे भी ले लिया 1 और ये भी 1. ठीक है, now we have to connect the vertices which are differing in 1 bit position. So let us do this. ठीक, तो देखो इसमें और इसमें 1 बिट पोजीशन का डिफरेंस है, केवल MSB का. कनेक्ट करो, ये कनेक्ट होगा. ऐसे ही ये कनेक्ट होगा 0 0 1 0 1 0 1 0 से. ठीक है, ऐसे ही ये जो है ये कनेक्ट होगा इस वाले से. ठीक है, इतना. फिर इसके बाद 0 1 0 0 और 1 1 0 0 ये आपस में कनेक्ट होंगे. ठीक है, तो लेट मी डू दिस बाय दिस वन. गॉट इट. तो ये 4 हमने इधर के 4 से कनेक्ट कर दिए. ऐसे ही ये जो 0 0 0 1 है इसका 1 0 0 1 से कनेक्ट होगा, तो हमने इसको कनेक्ट कर दिया. ये जो 0 1 0 1 है 1 0 0 1 से कनेक्ट होगा, ये कनेक्ट कर दिया.
ये जो 0011 है, 0011, ये 1011 से कनेक्ट होगा, 1011 से कनेक्ट कर दिया। सॉरी, हमने कनेक्ट किया 0001 को 1101 से, 0011 को 0011 को 1011 से, और 0111 को 4 टाइम 1 से। So this is the graph Q4. Okay. So by this way you can draw any Qn plus 1 by using 2 copies of Q1, and then we have to add 0 in one copy and 1 in other copy, and making the vertices adjacent which are differing in 1 bit position. So any queries up to here you can ask. Got it? Okay. Now I am moving to the next one. After this, so we have defined this. We can construct Qn plus 1 by using this one. Okay. Now the other thing is regular graph. Regular graph मैं already आपको बता चुका हूँ. Regular graph is a graph, simple graph in which each vertex is of degree k, and that regular graph is called to be as k regular graph. जैसे आप बोल सकते हो CN ग्राफ जो है वो 2 रेगुलर ग्राफ है, क्योंकि CN में सभी वर्टिसेस का जो डिग्री है वो 2 होता है. कंप्लीट ग्राफ जो है वो n-1 रेगुलर ग्राफ है, क्योंकि कंप्लीट ग्राफ में हर एक वर्टेक्स का जो डिग्री है वो हमेशा n-1 होता है. ठीक है, so this is called to be as regular graph. Now we are moving to the next category. It is known to be as bipartite graph. ठीक है, so what is bipartite graph? So here we are saying a simple graph G is called to be as bipartite if its vertex set V can be partitioned into 2 disjoint sets V1 and V2 such that every edge in the graph connects a vertex in V1 and a vertex in V2. ठीक है, तो अगर आपको कोई ग्राफ G गिवन है, G का मतलब there will be set vertex set V and edge set E. ठीक है, अब अगर हम इस V सेट को 2 पार्ट में डिवाइड कर सके, 2 पार्ट क्या है यहाँ पे, तो एक पार्ट V1 है और दूसरा पार्ट V2 है. ठीक है, कंडीशन ये है कि जो एजेज होंगी वो V1 के एक वर्टेक्स को V2 के एक वर्टेक्स से कनेक्ट करना चाहिए. ठीक है, जो भी एजेज होंगी that will connect one vertex from V1 to one vertex from V2. यानी V1 आपस में कनेक्ट नहीं होना चाहिए और V2 आपस में कनेक्ट नहीं होना चाहिए. ऐसा कोई एज नहीं होना चाहिए जिससे V1 के वर्टिसेज आपस में कनेक्ट हो या V2 के वर्टिसेज आपस में कनेक्ट हो. ठीक है, सभी एजेस जो हैं V1 के एक वर्टेक्स को V2 के एक वर्टेक्स से कनेक्ट करने चाहिए. ठीक है, तो इस केस में हम इस ग्राफ को बोलते हैं बाइपर्टाइट ग्राफ. और जो 2 हमने पार्ट डिवाइड किए या 2 हमने जो एक पेयर फाइंड आउट किया V1 V2, उसको हम बाइपार्टीशन बोलते हैं. ठीक है, so let us do this by one example. ठीक है, here we have taken various 3 examples. ठीक है, यहाँ पे हमने दिखाया है कि ये एक सेट है जिसमें 4 वर्टेक्स हैं और ये एक दूसरा सेट है जिसमें हमने 5 वर्टेक्स लिए हैं. ठीक है, तो एक ग्राफ में हमारे पास टोटल 9 वर्टिसेज हैं, 9 वर्टिसेज हैं, जिसमें हमने 4 को एक सेट में रखा और इन 5 को एक सेट में रखा. एंड नाउ वी कैन वेरीफाई दैट each edge is corresponding to one vertex from this set to the one vertex from this set. ठीक है, जो भी एजेज हैं वो इस सेट के एक वर्टेक्स को इस सेट के एक वर्टेक्स से कनेक्ट कर रही है. So that's why this is an example of bipartite graph. इसी तरीके से ये जो ग्राफ है ये भी bipartite ग्राफ है, क्योंकि यहाँ पे ये एक सेट है और ये एक दूसरा सेट है. रेड कलर जो है
वो एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो ब्लैक कलर लिया है वो जो है दूसरे सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और आप देखो जो भी एजेज हैं वो क्या कर रही हैं, रेड को ब्लैक से कनेक्ट कर रही हैं। ठीक है, कभी भी रेड आपस में कनेक्टेड नहीं है या ब्लैक आपस में कनेक्टेड नहीं है। तो दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ बाइपर्टाइट ग्राफ। ठीक है, आप ऐसे ही इस एग्जांपल को देख सकते हो। यहाँ पे भी जो रेड है वो एक सेट में रहेगा और जो ब्लैक है वो दूसरे सेट में रहेगा। तो आप देखो जो भी एजेज हैं वो रेड को ब्लैक से कनेक्ट कर रही हैं, कभी भी रेड रेड से कनेक्टेड नहीं है या ब्लैक ब्लैक से कनेक्टेड नहीं। ठीक है, तो किसी भी ग्राफ के लिए अगर ये पॉसिबल हो कि उसके वर्टेक्स सेट को हम दो सबसेट में डिवाइड कर सकें, जहां पे जो एजेज हैं वो एक सबसेट के वर्टेक्स को दूसरे सबसेट के वर्टेक्स से कनेक्ट करें, तो दैट काइंड ऑफ ग्राफ इज नोन टू बी एज बाइपर्टाइट ग्राफ। ठीक है, यानी कि वो ग्राफ जिसको हम केवल दो कलर से कलरिंग कर सके, जिससे एडजेसेंट वर्टिसेस कभी भी सेम कलर की ना हो। तो दिस काइंड ऑफ ग्राफ इज कॉल्ड टू बी एज बाइपर्टाइट ग्राफ। और बाइपर्टाइट ग्राफ की प्रॉपर्टी होती है कि ये हमेशा टू कलरेबल होता है। टू कलरेबल का मतलब ये होता है कि आप दो कलर से ग्राफ को वर्टिसेस को कलर कर सकते हो सच दैट नो एडजेसेंट वर्टिसेस विल बी ऑफ सेम कलर। ठीक है, नाउ हियर आई हैव टेकन वन मोर एग्जांपल। ये एक ग्राफ है, तो दिस ग्राफ इज C6 ग्राफ। ठीक है, दिस इज C6 ग्राफ। C6 का मतलब साइकिल ग्राफ विथ 6 वर्टिसेस। ठीक है, अब इस C6 ग्राफ में लुक एट दिस, लेट मी डू दिस हियर। इसको हमने ले लिया V1 वर्टेक्स, इसको हमने नाम दे दिया सपोज V2 वर्टेक्स, इसको हमने नाम दे दिया V3 वर्टेक्स, इसका नाम रख दिया हमने V4, इसका नाम रख दिया हमने V5, और इसका नाम रख दिया हमने V6। ठीक है, तो ये एक ग्राफ है जिसमें ये 6 वर्टिसेज हैं V1 से लेके V6 तक। यानी वर्टेक्स सेट V क्या है, तो इट कंसिस्ट ऑफ दिज 6 वर्टिसेज। ओके, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, तो हियर द ऑब्जेक्टिव इज टू वी हैव टू डिवाइड दिस वर्टेक्स सेट V इनटू टू पार्ट। ठीक है, तो हमें इसको दो पार्ट में डिवाइड करना है। एक हम V1 सबसेट ले रहे हैं और एक हम V2 ले रहे हैं। ठीक है, अगर हम V1 सबसेट में पहले वर्टेक्स V1 को पुट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि इस सबसेट में V2 नहीं आ सकता और V6 नहीं आ सकता। ठीक है, V1 में अगर हम वर्टेक्स V1 को पुट कर रहे हैं, या कंफ्यूजन है तो आप इसको X और Y नाम दे दो, दैट विल बी मोर क्लियर टू यू। ओके, सपोज दो सेट में डिवाइड करना है, X में और Y में। ठीक है, तो X सेट में अगर हम V1 को रख रहे हैं, तो X सेट में कभी भी V2 और V6 नहीं आ सकता, क्योंकि V2 और V6 दोनों ही V1 के एडजेसेंट है। ठीक है, मैंने बताया बाइपार्टीशन का मतलब ये होता है कि एक सेट में जो वर्टिसेज हैं वो आपस में कनेक्ट नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो V1 इसमें आ गया तो V2 को हम इसमें नहीं रख सकते, तो इसलिए हमने V2 को क्या किया, दूसरे सबसेट में रखा। ठीक है, अब हम V3 की अगर बात करें, तो V3 जो है जिस सेट में V2 है उस सेट में V3 नहीं आ सकता, क्योंकि V2 और V3 एडजेसेंट है। लेकिन V1 और V3 एडजेसेंट नहीं है, तो इसलिए V1 के साथ हम V3 को रख सकते हैं। V1 वाले सेट में हम V3 को पुट कर सकते हैं, क्योंकि V1 और V3 एडजेसेंट नहीं है, लेकिन V2 और V3 एडजेसेंट थे, इसलिए हम दोनों को साथ नहीं रख सकते। अगर हम V4 की बात करें, तो V4 जो है V3 के एडजेसेंट है, तो जिस सेट में V3 आएगा उसमें हम V4 को नहीं रख सकते। दूसरे सेट में देखें, यहाँ पे V2 है और V2 और V4 आपस में एडजेसेंट नहीं है, इसलिए ये दोनों एक सेट में आ सकते हैं।
तो हमने V4 को रख लिया। अगर हम V5 की बात करें तो V5 जो है V4 के एडजेसेंट है, तो जिस सेट में V4 आ रहा है उसमें V5 नहीं आएगा। दूसरे सेट में अगर हम देखें तो यहाँ पे V1 है, तो V5 जो है V1 के एडजेसेंट नहीं है, V5 जो है V3 के एडजेसेंट नहीं है, तो इसलिए V5 को हम इन दोनों के साथ रख सकते हैं सेट X में। इन द सेम वे जो V6 है वो V5 के एडजेसेंट है, तो जिसमें V5 होगा या V1 होगा उसमें V6 नहीं आएगा। ठीक है, अगर हम इस सेट की बात करें तो यहाँ पे V2 है, V6 और V2 एडजेसेंट नहीं है, V4 और V2 V6 एडजेसेंट नहीं है, तो इसलिए हम V6 को यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। So therefore we have a possibility that we can divide this vertex set into two subsets such that no two adjacent vertices are in same set. ठीक है, so that's why this C6 is an example of bipartite graph, and this set n X and Y, or you can say V1 and V2, is called to be as bipartition. ठीक है, और हमने इस ग्राफ को यहाँ पे रीड्रॉ किया हुआ। ठीक है, तो एक सेट में हम V1 V3 V5 रखेंगे, दूसरे सेट में हम V2 V4 V6 रखेंगे और एजेस को कनेक्ट कर देंगे। तो एजेस क्या है, V1 से V2 के लिए है तो V1 से V2 को कनेक्ट कर दिया, फिर V2 से V3 के लिए है तो V2 और V3 को कनेक्ट कर दिया, फिर V3 और V4 के बीच में एज है तो V3 और V4 को कनेक्ट कर दिया, फिर V4 और V5 के बीच में एज है तो V5 और V4 को कनेक्ट कर दिया, फिर V5 और V6 के बीच में एज है तो V5 और V6 को कनेक्ट कर दिया, और V1 और V6 में एज है तो V1 और V6 को कनेक्ट। ठीक है, तो इस ग्राफ में टोटल 6 एजेज हैं, वो 6 एजेज हमने यहाँ पे ले लिया। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 एजेज हैं। ठीक है, तो 6 एजेज हमने यहाँ पे रीड्रॉ। तो ये भी C6 ग्राफ है और ये भी C6 ग्राफ है। ठीक है, लेकिन डिफरेंस ये है कि यहाँ पे C6 को हमने जो ड्रॉ किया है वो बाइपर्टाइट ग्राफ की तरह ड्रॉ किया है, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव था कि whether we are able to split this vertex set V into two subset V1 and V2 such that no adjacent vertices are in same set. So it is possible, so that's why we can say the graph C6 is always bipartite. ठीक है, in the same way, if we have to find out whether C4 is bipartite, tell me whether this C4 is bipartite or not. This is your C4 graph. C4 means cycle graph with 4 vertices. Yes, tell me whether this graph is bipartite or not. Yes, so this graph is also bipartite, क्योंकि हम इसको दो सेट में डिवाइड कर सकते हैं। एक सेट में हम V1 और V3 ले लें, क्योंकि V1 और V3 एडजेसेंट नहीं है, और दूसरे सेट में हम V2 और V4 रख लें, क्योंकि V2 और V4 आपस में कनेक्टेड नहीं है। और इस ग्राफ को हम रीड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे होगा, ये मान लो V1, ये मान लो V2, ये V2 और ये V4, ये आपका हो गया V2, ये हो गया V4, और पहले सेट में हमने लिया V1 और V3। एजेस जो है ग्राफ के अकॉर्डिंग कनेक्ट कर दो, V1 और V2 कनेक्टेड है तो V1 और V2 कनेक्ट कर दिया, V2 और V3 कनेक्टेड है तो V2 और V3 के बीच में एज लगा दिया, फिर V3 और V4 कनेक्टेड है तो V3 और V4 को कनेक्ट कर दिया, और फिर V4 और V1 कनेक्टेड है तो V4 और V1 को कनेक्ट कर दिया। Now this one. So from this we can verify that this is also a bipartite graph, because it is possible to split the vertex set V into two subsets V1 and V2 such that no two adjacent vertices are in the same set. Okay, तो V1 और V3 एक सेट में होगा जहाँ पे V1 V3 कनेक्टेड नहीं है, और दूसरे सेट में V2 और V4 होगा जहाँ पे V2 और V4 कनेक्टेड नहीं है। ठीक है,
So that's why this is an example of bipartite graph. Okay, so whenever we have to find out whether the graph is bipartite or not, the objective is to, we have to split the vertex set into two subsets or two partition such that no two vertices are adjacent in same partition. ठीक है, कभी भी एक पार्टीशन के अंदर कोई भी वर्टिसेज एडजेसेंट नहीं होने चाहिए. जो भी एजेज होंगी वो एक पार्टीशन के वर्टेक्स को दूसरे पार्टीशन के वर्टेक्स से कनेक्ट करेंगी. ओके, so this is called to be as bipartite graph. Yes, any queries in this you can ask. Now one more thing is here, there is one more term that is called to be as complete bipartite graph. ठीक है, जैसे हमने ग्राफ के केस में कंप्लीट ग्राफ पढ़ा. कंप्लीट ग्राफ का मतलब होता है कि all the vertices must be connected to all other vertices. Then the graph is called to be as complete graph. In the same way, complete bipartite graph का मतलब होता है if each vertex of one set is connected to each vertex of the other set, then that bipartite graph is called to be as complete bipartite graph. ठीक है, तो अगर हम इस C6 की बात करें, अगर हम C6 ग्राफ की बात करें, तो ये C6 ग्राफ जो है ये कंप्लीट बाइपर्टाइट ग्राफ नहीं है. ठीक है, जो C6 ग्राफ है वो कंप्लीट बाइपर्टाइट ग्राफ नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि V1 जो है V4 से कनेक्टेड नहीं है, या V3 जो है V6 से कनेक्टेड नहीं है, या V5 जो है V2 से कनेक्टेड नहीं है. तो ये तीन एजेस मिसिंग है इसमें. इसलिए ये जो ग्राफ है C6 वो बाइपर्टाइट तो है लेकिन कंप्लीट बाइपर्टाइट नहीं है. कंप्लीट बाइपर्टाइट होने का मतलब एक सेट के सभी वर्टिसेस दूसरे सेट के सभी वर्टिसेस से कनेक्टेड होने चाहिए. ठीक है, तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कंप्लीट बाइपर्टाइट ग्राफ. तो इसलिए जो C6 ग्राफ है वो कंप्लीट बाइपर्टाइट ग्राफ नहीं है. लेकिन अगर हम C2 की बात करें, सॉरी C4 की बात करें, तो जो C4 ग्राफ है वो कंप्लीट बाइपर्टाइट ग्राफ है. क्यों? क्योंकि V1 जो है V2 V4 दोनों से कनेक्टेड है, V3 जो है V2 V4 दोनों से कनेक्टेड है. यानी each vertex of one subset is connected to each vertex of other subset. तो इसलिए ये जो आपका C4 है वो कंप्लीट बाइपर्टाइट ग्राफ है, लेकिन ये जो C6 है वो कंप्लीट बाइपर्टाइट ग्राफ नहीं. गॉट इट? तो अगर हमें इसको कंप्लीट बाइपर्टाइट ग्राफ करना है तो इसमें हमें ये एजेज इंक्लूड करनी होगी. एक तो ये, दूसरा ये, और तीसरा ये. तो अगर ये तीन एजेज इसमें ऐड हो जाए तो अब ये कंप्लीट बाइपर्टाइट ग्राफ होगा. ठीक है, और कंप्लीट बाइपर्टाइट ग्राफ को हम के से हम कंप्लीट ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं के एन से. तो ऐसे ही कंप्लीट बाइपर्टाइट ग्राफ को हम के एम कॉमा एन से रिप्रेजेंट करते हैं, जहां पे एम जो है पहले सबसेट में वर्टिसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है और एन जो है दूसरे सबसेट में वर्टिसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो इसलिए ये जो C4 ग्राफ है इसको हम बोल सकते हैं what the name for this C4 graph? Yes, anyone? What will be the name for C4 graph in context to complete bipartite graph? So this is K. Yes, Nitya, you are correct. It is K22. K2 सबस्क्रिप्ट में लिख रहे हैं हम 2,2. K22 इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक सबसेट में दो वर्टेक्स हैं और दूसरे सबसेट में भी दो वर्टेक्स हैं, और पहले सबसेट की दोनों वर्टिसेस दूसरे सबसेट की दोनों वर्टिसेस से कनेक्टेड है. ऐसे ही अगर हम इस ग्राफ की बात करें तो इस ग्राफ में अगर हम ये तीन एजेस ऐड कर देते हैं तो नाउ दिस इज कॉल्ड टू बी एज K33. K3, 3, क्योंकि पहले सबसेट में भी 3 वर्टिसेज हैं और दूसरे सबसेट में भी 3 वर्टिसेज हैं, और पहले सबसेट के 3 वर्टिसेज दूसरे सबसेट के 3 वर्टिसेज से कनेक्टेड है. ओके,
तो C6 जो है वो K33 नहीं है, ये K33 तभी होगा जब ये तीन गॉट इट। So this is the difference of bipartite graph and complete bipartite graph. Any queries up to here you can ask. Yes, anyone? जब भी हमें बाइपार्टाइट चेक करना होगा, हमारा ऑब्जेक्टिव होगा कि वर्टेक्स सेट को हम दो पार्ट में डिवाइड करें, और वो पार्ट ऐसे होने चाहिए कि कभी भी एक पार्ट के वर्टेक्स जो है सेम पार्ट के वर्टेक्स से कनेक्टेड ना हो। ठीक है, यानी कि दो एडजेसेंट वर्टिसेस कभी भी एक पार्टीशन में नहीं आ सकते। तो अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो देन दैट थिंग इज नोन टू बी एज बाइपार्टाइट ग्राफ। अब बाइपार्टाइट ग्राफ कंप्लीट बाइपार्टाइट तब होगा जब एक सबसेट के सभी वर्टिसेस दूसरे सबसेट के सभी वर्टिसेस से कनेक्टेड हो। तो कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए नोटेशन है के एम कॉमा एन। यहाँ पे एम जो है पहले सबसेट के नंबर ऑफ वर्टिसेज हैं और एन जो है दूसरे सबसेट के नंबर ऑफ वर्टिसेज। ओके, so I hope it will be clear to all of you. Now I am moving to next one. तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये सिंपल ग्राफ इज बाइपार्टाइट इफ एंड ओनली इफ इट इज पॉसिबल टू असाइन वन ऑफ टू डिफरेंट कलर्स टू each adjacent of the graph so that no two adjacent vertices are assigned the same color. तो देखो, अगर आपका ये गिवन ग्राफ है तो इस गिवन ग्राफ को हम बाइपार्टाइट ग्राफ बोल रहे हैं। कैसे? तो देखो, अगर आपको इसमें कंफ्यूजन है तो लेट मी नेम इट, इसका नाम रख देते हैं। सपोज ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई एफ, ठीक है, जी और ये एच। यस, टेल मी टू सबसेट्स, V1 की वैल्यू क्या होगी और V2 की वैल्यू क्या होगी? तो हम पहले वर्टेक्स ए से स्टार्ट करते हैं फॉर एग्जांपल। तो अगर हम ए को V1 में पुट कर रहे हैं तो ए जब V1 में आ गया तो बी, ई और डी, बी, ई और डी ये तीनों ही V1 में नहीं आ सकते क्योंकि ये तीनों ही ए के एडजेसेंट है। तो इसलिए हमें बी को दूसरे सबसेट में रखना पड़ेगा। ठीक है, इसको मैं दूसरा कलर ले लूं। लेट मी डू दिस। हमने पहले सबसेट में ए रखा तो पहले सबसेट में हम बी को नहीं रख सकते क्योंकि ए और बी एडजेसेंट है, तो हमने बी को दूसरे सबसेट में रख दिया। अब अगर हम सी की बात करें तो ए और सी एडजेसेंट नहीं है लेकिन बी और सी एडजेसेंट है, यानी कि जहां पे बी आ रहा है उस वाले सेट में सी नहीं आएगा, तो सी को हम ए के साथ रख सकते हैं, बी के साथ नहीं रख सकते। अगर हम डी की बात करें तो सी और डी एडजेसेंट है और ए और सी भी एडजेसेंट है, यानी कि जहां पे ए और सी है वहां पे डी नहीं आएगा, लेकिन बी और डी एडजेसेंट नहीं है इसलिए बी के साथ हम डी को पुट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर हम ई वर्टेक्स की बात करें तो ई वर्टेक्स जो है वो ए के एडजेसेंट है, यानी कि जिस सेट में ए आएगा उसमें ई नहीं आएगा। ठीक है, तो पहले V1 में तो नहीं आएगा। अब हम V2 में चेक करते हैं। V2 में B है तो E और B एडजेसेंट नहीं है, E और D एडजेसेंट नहीं है, तो इसलिए B और D के साथ E आ सकता है। ठीक, ऐसे ही F के लिए तो D और F एडजेसेंट है तो D के साथ F नहीं आएगा। अब V1 में चेक करते हैं, A के साथ F एडजेसेंट नहीं है, C के साथ F एडजेसेंट नहीं है, इसलिए F को हम A और C के साथ रख सकते हैं। ठीक है, G अगर हम बात करें तो G जो है B के एडजेसेंट है, तो जिस सेट में B आएगा उस सेट में G नहीं आएगा। अब अगर हम इसमें रखना चाहें तो G को देखो, A के एडजेसेंट नहीं है, C के एडजेसेंट नहीं है, F के एडजेसेंट नहीं है, यानी इन तीनों के साथ हम G को पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गया।
और अगर हम H की बात करें तो H क्योंकि C के साथ एडजेसेंट है तो जिसमें C आ गया उसमें H नहीं आएगा, यानी हम इसके साथ चेक कर लेते हैं। तो H B के साथ एडजेसेंट नहीं है, D के साथ एडजेसेंट नहीं है और E के साथ एडजेसेंट नहीं है, इसलिए हम H को यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, so this is the value of V1 and V2 such that no two vertices are adjacent in the same set. कभी भी एक सेट में दो वर्टिसेस एडजेसेंट नहीं होंगे। ठीक है, आप देखो ACFG इन सबको हमने यहाँ पे एक कलर दिया रेड कलर, और BDEH इन सबको हमने एक कलर दिया दैट इज ब्लैक कलर। So that's why here we are saying that all bipartite graphs are always two colorable graphs. टू कलरेबल ग्राफ्स का मतलब ये होता है कि आप उसको दो कलर से कलरिंग कर सकते हो सच दैट नो टू एडजेसेंट वर्टिसेस विल बी ऑफ सेम कलर। कभी भी दो एडजेसेंट वर्टिसेस सेम कलर की नहीं होंगी। ठीक है, तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ बाइपार्टाइट ग्राफ। वन मोर थिंग वी कैन रिमेंबर हियर कि जो CN ग्राफ है, यस टेल मी द रिलेशनशिप ऑफ CN एंड बाइपार्टाइट ग्राफ, एनीवन? What will be the relationship of CN and the bipartite graph? Is CN always bipartite? Rishabh, you are saying always bipartite. Okay, so this is C3. Suppose, just wait. एक्चुअली मेरे पास माउस नहीं है यहाँ पे, तो इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है ड्रॉ करने में। सो हियर वी हैव, अगर हम C3 की बात करें, ये आपका C3 हो गया, ये C3 ग्राफ है। सो वेदर इट इज बाइपार्टाइट, बोलो, क्या ये बाइपार्टाइट है? नहीं है। क्यों? क्योंकि हम इसको दो सबसेट में डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, क्यों नहीं कर सकते? तो इसका रीजन ये है, जैसे मान लो इसको नाम दे दिया हमने A, इसको नाम दे दिया वर्टेक्स B, और इसको नाम दे दिया हमने C। तो क्योंकि A और B एडजेसेंट है तो A को हम एक सेट में रखेंगे, B को दूसरे सेट में रखेंगे। लेकिन व्हाट अबाउट C? तो C तो दोनों के एडजेसेंट है ना, तो वो A के साथ भी नहीं आ सकता और B के साथ भी नहीं आ सकता। तो इसलिए दिस ग्राफ इज नॉट बाइपार्टाइट ग्राफ, क्योंकि हम इसको दो पार्टीशन में डिवाइड नहीं कर सकते, सो दैट नो एडजेसेंट वर्टिसेस बिलोंग्स टू सेम सेट। ठीक है, इसलिए ये बाइपार्टाइट नहीं है। द सेम इज द रीजन फॉर C5। अगर हम C5 ड्रॉ करें तो C5 जो है ऐसे होता है, मिटाई दूं मैं इसको। C5 ये आपका C5 ग्राफ है। ये हो गया मान लो A, ये B, ये C, ये D और ये E। तो ये भी बाइपार्टाइट ग्राफ नहीं है, क्योंकि वर्टेक्स A को आप किसी भी सेट में नहीं रख पाओगे। ठीक है, क्योंकि A जो है वो किसी भी सेट को बिलोंग नहीं करेगा, हम उसको डिवाइड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो B के भी एडजेसेंट है और E के भी एडजेसेंट है। गॉट इट? ठीक है, so from here we have concluded that CN graph is always bipartite whenever n is even, and whenever n is odd it is not bipartite. ठीक है, so this is the property of CN and bipartite graphs. So CN graph will be bipartite whenever n is even, and CN graph is not bipartite whenever n is odd. तो C3, C5, C7, C9, C11 ये कोई भी बाइपार्टाइट नहीं होता। C4, C6, C8, C10, C12 ये सभी बाइपार्टाइट होते हैं। ठीक है, नाउ टेल मी फॉर WN, so can you conclude anything
for Wn. Tell me, what about Wn? तो Wn कभी भी बाइपर्टाइट नहीं होगा। उसका रीजन ये है कि Wn में एक वर्टेक्स होता है जो सबसे कनेक्टेड होता है, ठीक है। हाँ, ड्यू टू मिडल वर्टेक्स जो है, जानवी यू आर सेइंग कंप्लीट बाइपर्टाइट, Wn कंप्लीट बाइपर्टाइट कैसे होगा? Wn में एक नोड ऐसा होता है जो सभी नोड से कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो अगर हम उस नोड को अलग करें, यानी कि वो नोड जो है बाकी किसी के साथ सबसेट में नहीं आएगा, ठीक है, पहली बात। दूसरा, ये जो बाकी वर्टिसेज हैं वो भी आपस में कनेक्टेड होते हैं, तो इसलिए वो बाकी सभी वर्टिसेज जो हैं वो एक साथ नहीं आ सकते। जैसे मैं यहाँ पे ड्रॉ करूं, दिस इज C5, तो W5 में ड्रॉ कर रहा हूँ, ये W5 है। डोंट गो फॉर ड्राइंग्स, तो ड्राइंग थोड़ी साफ नहीं बन रही है ना, लेकिन आई थिंक इट विल बी अंडरस्टैंडेबल। ओके, तो ये W5 है, ग्राफ है, क्योंकि C5 से हम W5 ड्रॉ कर सकते हैं। तो आप देखो, अगर हम इसको डिवाइड करना चाहें, ये हमने F नाम दे दिया इसको, ठीक। सो डिवाइड इट इनटू 2 सबसेट्स। तो एक सबसेट में अगर हम A रख रहे हैं तो उसमें B नहीं आएगा, तो B को हमें दूसरे में रखना पड़ेगा। अगर हम C की बात करें तो C B के साथ नहीं आएगा, लेकिन A के साथ आ सकता है। D जो है C के साथ नहीं आएगा, लेकिन A के साथ आ सकता है। सॉरी, B के साथ आ सकता है। D जो है C के साथ नहीं आएगा, लेकिन B के साथ आ सकता है। अब अगर हम E की बात करें तो E जो है वो A के साथ नहीं आएगा, क्योंकि A से एडजेसेंट है, तो पहले सबसेट में नहीं रख सकते। E को हम पहले सबसेट में नहीं रख सकते, और E को हम दूसरे सबसेट में भी नहीं रख सकते, क्योंकि वो D के एडजेसेंट है। That's why now it is not possible to place E as well as F. ओके, तो इसलिए ये कंक्लूजन निकलता है यहां से कि Wn जो है कभी भी बाइपर्टाइट नहीं होगा। यस, एनी क्वेरीज इन दिस यू कैन आस्क। इन द सेम वे, जो कंप्लीट ग्राफ है Kn, वो भी कभी बाइपर्टाइट नहीं होता। Kn जो है वो भी कभी भी बाइपर्टाइट नहीं होता, क्योंकि Kn ग्राफ में सभी वर्टिसेस जो हैं सभी दूसरे वर्टिसेस से कनेक्टेड होते हैं। So that's why it is not possible to split it into two subsets such that no adjacent vertices are placed in the same subset. ठीक है, तो ये कंक्लूजन है यहाँ पे कि जो Wn है और जो Kn है वो कभी भी बाइपर्टाइट नहीं होंगे। ठीक है, Cn बाइपर्टाइट केवल तब होगा जब n जो है इवन है, और n अगर ऑड है तो Cn भी बाइपर्टाइट नहीं होगा। So this is all about bipartite graph. Any queries up to here? You can ask. ये कंप्लीट बाइपर्टाइट ग्राफ मैंने अभी बताया आपको, इसको हम KMN से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पार्टीशन इनटू 2 सबसेट्स, जहाँ पे पहले सबसेट में m वर्टिसेस और दूसरे सबसेट में n वर्टिसेस, और एवरी वर्टेक्स ऑफ फर्स्ट सेट इज कनेक्टेड टू एवरी वर्टेक्स ऑफ सेकंड सेट। तो दिस इज कॉल्ड टू बी एज कंप्लीट बाइपर्टाइट ग्राफ। ये मैंने ड्रॉ किया हुआ है। दिस इज K23, क्योंकि यहाँ पे ये 2 वर्टिसेज हैं एक सेट में, और दूसरे सेट में 3 वर्टिसेज हैं, और इसकी सभी वर्टिसेज इसकी सभी वर्टिसेज से कनेक्टेड है। तो ये K23 हो गया, ये K33 हो गया, ये K35 हो गया, और ये K26 हो गया। तो इन दिस वे यू कैन ड्रॉ KMN। ठीक है, यू कैन लुक अपॉन, क्योंकि एक सबसेट के वर्टिसेज जो हैं आपस में कनेक्टेड नहीं है। आप देख सकते हो इसमें, दिस वन, इसमें ये दोनों कनेक्टेड नहीं है, इसमें ये तीनों कनेक्टेड नहीं है। इसी तरीके से इसमें
ये तीनों कनेक्टेड नहीं है, इसमें ये तीनों कनेक्टेड नहीं है, ऐसे ही यहाँ पे भी है, ये तीनों में कोई भी कनेक्टेड नहीं है, और ये पांचों में कोई भी कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, so that's why this is called to be as bipartite graph and this is complete bipartite graph, क्योंकि एक सेट के सभी वर्टिसेस जो हैं दूसरे सेट के सभी वर्टिसेस से कनेक्टेड है। ठीक है, तो नंबर ऑफ एजेस कितनी होगी कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ में? अगर आपका के एम एन ग्राफ है तो नंबर ऑफ एजेस कितनी होंगी बताओ जल्दी। नंबर ऑफ वर्टिसेस तो हो गई m प्लस एन, और नंबर ऑफ एजेस कितनी होगी? दैट विल बी m इंटू एन, m इंटू एन। ठीक है, और पहले सेट के सभी वर्टिसेस n डिग्री के होंगे, दूसरे सेट के सभी वर्टिसेस m डिग्री के होंगे, क्योंकि mn है, mn का मतलब m वर्टिसेस सभी n वर्टिसेस से कनेक्टेड है और n वर्टिसेस सभी m वर्टिसेस से कनेक्टेड है। गॉट इट? तो दिस इज द थिंग, किसी भी बाइपार्टाइट ग्राफ में मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस जो हैं वो होती हैं आपकी n स्क्वायर बाई 4, क्योंकि n/2 का हम डिवीजन कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं। ठीक है, सेम इज फॉर एनीथिंग। तो सिंपल कॉन्सेप्ट यही है इसका कि जब भी हमें बाइपार्टाइट चेक करना हो तो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि उसके वर्टेक्स सेट को हम दो पार्ट में डिवाइड करें, सच दैट कि जो वर्टिसेज हैं सेम पार्ट के वर्टिसेज कभी भी एडजेसेंट नहीं होने चाहिए। तो इफ वी आर एबल टू डू सो देन दैट ग्राफ इज कॉल्ड टू बी एज बाइपार्टाइट ग्राफ, और एक सेट के सभी वर्टिसेज दूसरे सेट के सभी वर्टिसेज से कनेक्टेड हो तो उसको हम कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ बोलते हैं। Okay, so this is all about this bipartite. Then comes one more term that is called subgraph. Shivam, you are asking Q1 bipartite होता है, तो let you check. Q1 की बात करें तो Q1 bipartite होगा? नहीं होगा, क्योंकि दो ही वर्टिसेज हैं और उन दोनों वर्टिसेज को हम दो सबसेट में डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि दोनों ही एडजेसेंट है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम Q2 की बात करें तो Q2 बाइपार्टाइट होगा, तो Q2 विल बी बाइपार्टाइट। ठीक है, क्योंकि Q2 जो है उसमें 4 वर्टिसेज हैं जिसमें ये है, तो Q1 बाइपार्टाइट नहीं है, Q2 बाइपार्टाइट है। Q3 की बात करें तो Q3 बाइपार्टाइट होगा, जस्ट ट्राई दिस। ठीक है, आप इसको डिवाइड करके देखो कि 8 वर्टिसेज हैं, इन 8 वर्टिसेज को क्या हम दो सबसेट में डिवाइड कर सकते हैं? ठीक है, तो यू विल चेक ऑन कि ये बाइपार्टाइट होगा या नहीं। ठीक है, मैंने आपको ड्रॉ करना सिखा दिया, आप उसकी हेल्प से ये चेक कर सकते हो कि बाइपार्टाइट हो गया है। ओके, नाउ सब ग्राफ का मतलब ये है कि अगर कोई ग्राफ जी है, जी का मतलब वर्टेक्स सेट V और एज सेट E, तो एक दूसरा अगर हम ग्राफ ले रहे हैं H, यहाँ पे H क्या है? वर्टेक्स सेट हमने W लिया और एज सेट F लिया, जहां पे W जो है V का सबसेट है और F जो है E का सबसेट है, तो देन दिस H इज कॉल्ड टू बी एज सबग्राफ ऑफ G। ठीक है, तो कोई भी ग्राफ H जो है G का सबसेट होगा कब? जब H के वर्टिसेस जो हैं G के वर्टिसेस का सबसेट हो और H के जो एजेज हैं वो G के एजेज का सबसेट हो। ठीक है, और अगर हमें इक्वल वाला कंडीशन हटा दें तो देन इट इज कॉल्ड टू बी एज प्रॉपर सबग्राफ। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ एजेस और नंबर ऑफ वर्टिसेस जो हैं इक्वल हो सकती हैं, वो पार्ट हटा दें हम तो देन इट इज कॉल्ड टू बी एज प्रॉपर सबग्राफ। तो जैसे कि हमने यहाँ पे K5 ग्राफ लिया है तो इसका ये एक सबग्राफ है। सबग्राफ इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो वर्टिसेज हैं A B C E,
4 है और यहाँ पे वर्टिसेज 5 है, ए बी सी डी ई। द सेट ए बी सी ई इज सबसेट टू ए बी सी डी ई। और यहाँ पे जो एजेज हैं, एजेस कितनी है टोटल 10, और यहाँ पे हमने एजेस कितनी रखी है 1 2 3 4 5। ठीक है, तो दिस 5 एजेस फॉर्म्स अ सबसेट टू दिस 10 एजेस। तो इसलिए ये ग्राफ जो है इसका एक सब ग्राफ। दिस इज जस्ट वन एग्जाम्पल। ठीक है, ऐसे ही आप कोई सा भी सबसेट ले सकते हैं। इट इज नॉट कंपल्सरी कि हमें चारे वर्टेक्स के साथ लेना है, आप 2 वर्टेक्स का भी ले सकते हो, आप सिंगल वर्टेक्स का भी ले सकते हो। ठीक है, जितनी चाहे उतनी एजेस ले सकते हो इसमें से। द थिंग इज दैट वी हैव टू टेक अ सबसेट ऑफ दिस। तो 5 का सबसेट लेना है वर्टेक्स के लिए और 10 का सबसेट लेना है एजेस के लिए। तो जो भी ग्राफ होगा कंसर्न, दैट ग्राफ इज कॉल्ड टू बी एज सब ग्राफ ऑफ दिस। ठीक है, तो किसी भी ग्राफ का अगर हमें सब ग्राफ बनाना है तो हमें उसमें से कुछ वर्टिसेज हटानी होगी और कुछ एजेस हटानी होगी। जो भी ग्राफ मिलेगा तो देन दैट ग्राफ इज कॉल्ड टू बी एज सब ग्राफ। ओके, so this is all about subgraph. In next class we will discuss about operations on graph. So any doubt up to here, you can just text me the message, I will reply you. Thank you very much.